Hello friends, good morning. Good morning to all of you. Welcome to an Academy SSC JEE channel. My name is अविनाश कुमार और हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से बात की थी। लास्ट क्लास में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट टॉर्जन एंड शियर स्ट्रेस। मैंने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की थी, टॉर्जन एंड शियर स्ट्रेस। मैंने आपको बताया था कि आपके पास टॉर्जन क्या होता है, टॉर्जन इक्वेशन क्या होती है, प्योर टॉर्जन इक्वेशन क्या होती है, and what are its various properties and various equation. Pure torsion equation मैंने आपको बताया था was tau by r is equals to t divided by ip is equals to g theta by l. This we have discussed last class. उसके बाद मैंने आप लोगों को इसके वेरियस टर्म्स के बारे में बताया था, g क्या होता है, ip क्या होता है, ip आपका सेक्शंस के लिए क्या होता है. I have told you about various assumptions that we are taking in the torsion, and next we have discussed about the shear stresses कि आपका shear stress variation किस तरीके से रहता है. I have told you for the rectangular section the variation is parabolic. This is for the variation of direct shear stress. Don't get it confused कि आपका torsional shear stress तो यहाँ पे tau proportional to r है. This is direct shear stress that is proportional, and this is like variation is parabolic, and the maximum shear stress was 1.5 times of mean shear stress. And for the circular section the variation is again parabolic, and in this case the value of maximum shear stress is equals to 4/3 times of mean shear stress. ठीक है, ये बात हमने लास्ट स्टार्ट की थी, एंड लास्ट क्लास में फिनिश करते वक्त मैंने आपको वेरियस सेक्शंस के लिए आपका बात की थी किस तरीके से आपका shear stress vary करता है. I have told you about that shear stress is inversely proportional to width. तो आपका width ज्यादा होगा तो shear stress कम होगा, width कम होगा तो shear stress ज्यादा होगा, उस हिसाब से आपका वेरिएशन रहता है. ठीक है, ये मैंने लास्ट आपसे बात की थी. We'll move forward. आज हम बात करने वाले हैं कुछ बढ़िया क्वेश्चंस की जो आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट्स, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज थ्योरी ऑफ फेलियर्स. उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर देखेंगे. आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट मे कम इन द अपकमिंग एग्जाम्स आल्सो. जो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जेईई के अंदर उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, let me introduce myself. My name is Avinash Kumar, and I have secured all India rank 4 in SSC JEE 2017. ठीक है, और इसके अलावा I have secured all India rank of 225 in GATE 2017. उसके अलावा मैंने 2 टाइम्स ESE मेंस क्वालिफाई किया है, एंड आई एम अ बीटेक फ्रॉम MNIT जयपुर, राइट. एंड फ्रॉम लास्ट 2 years I have been guiding for all the exams that we are dealing like GATE, ESE, SSC, जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आई एम गाइडिंग. And the subjects that I am taking is strength of materials, RCC, design, structure, transportation, soil mechanics. ये मेनली सब्जेक्ट डील करता हूँ, and one by one we'll discuss about the topics. Strength of material finish होने के बाद we'll discuss about theory of structures. जो structure analysis वाला पार्ट है उसको भी मैं आप लोगों के सामने कवर कर दूंगा. ठीक है, I will try to finish all the topics in this month only. तो बने रहिए मेरे साथ, और क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए if you have not subscribed yet. And yes, this is my code Avinash11. This is my personalized code जिसको आप अप्लाई करके you can join plus subscription and you can get 10% off. Along with that you will get the personalized guidance with me. You can join with me, and I will help you out in the exams till your end of the examination. तो आपको जब तक एग्जाम होगा you can get my personalized guidance if you apply this code and join the plus subscription. ठीक है. Various benefits of joining plus subscription are live classes are there, English and Hindi batches, crash courses, doubt clearing sessions, rank improvement batch, weekly test. मैंने लास्ट क्लास जब ली थी स्पेशल क्लास तो काफी बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर मेरा सिलेबस हो चुका है, अब मुझे कैसे रिवीजन करना चाहिए. वो चीज आपको कवर हो जाती है क्रैश कोर्स के अंदर. एक बच्चा मुझसे पूछता कि सर मैंने लास्ट ईयर तैयारी की थी, आई हैव गॉट 5000 रैंक इन गेट, now I am trying for rank under 500. So what should I do? You should practice more and more. For that we have RIV batch. एक बच्चा मुझसे बोलता कि सर मैं अभी जस्ट पास आउट हुआ हूँ, आई एम इन द 4th ईयर, आई एम इन द 8th सेम, तो व्हाट शुड आई डू? यू शुड ज्वाइन ऑल द लाइव क्लासेस. आपको बेसिक से स्टार्ट होके यू हैव टू मूव फर्दर. You can join live classes, clear your doubts, appear in the weekly test, join the test series. तो चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं तैयारी के, आप चाहे किसी भी लेवल पे हैं तैयारी के, there are multiple benefits of joining plus subscription.
एंड दिस इज ऑल अवेलेबल इन सिंगल पैकेज। अब मान लीजिए आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच ज्वाइन किया आपने, मान लीजिए आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आपका सॉइल मैकेनिक्स वीक है, अब आपको सॉइल कहाँ से पढ़नी है, तो सॉइल की क्लासेस चल रही है लाइव क्लासेस में, वहां से पढ़ लीजिए। तो सब कुछ वहां पे अवेलेबल है इन द स्ट्रक्चर्ड वे, यू जस्ट गो देयर एंड यू विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्लासेस। This is the method you can get the plus subscriptions. Just you have to pick the goal, whatever goal you are targeting. Not only for SSC, JEE, GATE, these structured courses are available in all the type of exams. तो आपके relative, आपके दोस्त जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, they can join and you just need to apply this code Avinash11 and you will get 10% off. चाहे CBSE 10th हो, चाहे आपका TNPC, CDS, GATE, EAC, कर्नाटका PSC, आप देखेंगे वहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज वहाँ पे अवेलेबल है। जस्ट क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन and choose the time period you are going for, 12 months or 24 months. I will prefer for the GATE, ESC and SSC students, and use this code Avinash11. Avinash11 code use कीजिए and you will get 10% off and you can connect with me for the technical exams, right? There are various payment methods, जो भी आपकी payment method possible है, all the payment methods are available, like debit cards, credit card, EMI options, all options are available. You just need to apply this code, remember this code, and you can get the discounts. This is the Telegram page that we have and this is the Facebook page. You can join and join the community. Okay, चलिए शुरू करते हैं इसके बाद क्लास, फटाफट से शुरू करते हैं, फटाफट से बाकी लोग ज्वाइन कर लेते हैं। We'll start the class quickly. सबसे पहले बात करेंगे, कल जो हमने कंसेप्ट देखे थे उसके बेस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं। तो बी रेडी विद योर पेन एंड पेपर, बी रेडी विद योर पेन एंड पेपर एंड विल डिस्कस few questions. चलिए, question number 1. Question number 1 is, it is asked a circular shaft can transmit a torque of 5 kilonewton per meter. तो आपको दे रखा है कि 5 kilonewton per meter जो है वो टॉर्क ट्रांसमिट कर सकता है। Now if the torque is reduced to 4 kilonewton per meter, then the maximum value of bending moment that can be applied in the shaft. That can be applied in the shaft. अब इसका क्या मतलब हुआ कि यार मैं तो टॉर्क अप्लाई कर रहा हूँ और ये मुझसे बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है। यहाँ पे आपका कंसेप्ट आता है इक्विवेलेंट टॉर्क का। ध्यान से समझिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है यहाँ पे। अब इक्विवेलेंट टॉर्क का क्या मतलब है, अब इसका मतलब समझिए दैट अगर आपके पास टॉर्क T5 किलो न्यूटन पर मीटर अप्लाइड है, इसकी वजह से आपके पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जांपल टाउ मैक्स हो रहा है। दूसरे केस में मेरे पास एक टॉर्क अप्लाइड है 4 किलोमीटर मीटर और एक मेरे पास मोमेंट अप्लाइड है m। इन दोनों को कंबाइंड इफेक्ट इस तरीके से है, सपोज कि यहाँ पे जो आपका शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो टाउ मैक्स के बराबर हो रहा है, तो दिस बोथ विल बी इक्वल एंड इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट टॉर्क। कॉम्बिनेशन ऑफ दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट टॉर्क। अब इक्विवेलेंट टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, torque equivalent is given by under root of m square plus t square, under root of m square plus t square. This is the value of equivalent torque. इसी तरह से आपके पास कंसेप्ट आता है इक्विवेलेंट मोमेंट का। पहले इसको फिनिश कर लेते हैं क्वेश्चन को, फिर उसकी बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास इक्विवेलेंट टॉर्क मतलब इसके बराबर होना चाहिए आपका, that is equals to 5 kilonewton per meter is equals to under root of 4 square plus m square. यहाँ से m की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल गिव यू 3 किलो न्यूटन मीटर। तो मोमेंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 किलो न्यूटन मीटर आ गई। मतलब इतना मोमेंट अगर अप्लाई कर दूं along with the torque value that is 4 किलो न्यूटन मीटर, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी शियर स्ट्रेस की, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, that will be the same as in the case when the torque of 5 kilo Newton meter is applied. अब देखिए, अब आपके पास ये तो आ गया इक्विवेलेंट टॉर्क। ध्यान रखिए इस फॉर्मूले को, प्लीज कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला। इक्विवेलेंट टॉर्क का फॉर्मूला ध्यान रखिए, एंड आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा दैट इज ऑफ इक्विवेलेंट bending moment. Next formula is of equivalent bending moment. Now
इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या बोलता है आपका? इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि मैंने मोमेंट m अप्लाई कर रखा था और उसकी वजह से फ्लेक्सुरल स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हुआ वो सपोज सिग्मा मैक्स हो गया। अब मेरा बेंडिंग मोमेंट m ना अप्लाई होके सपोज m1 और t1 अप्लाई हो रहा है और इसके कॉम्बिनेशन से सेम आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेस सिग्मा मैक्स यहाँ पे जनरेट हो गया। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा दिस इज कॉल्ड m इक्विवेलेंट, और m इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है m equivalent is given by 1/2 m plus under root m square plus t square. This is the formula for equivalent bending moment. तो आपको अगर equivalent bending moment निकालना हो, you can use this formula when the moment and torque both are applied, and equivalent torque का formula हो जाता है आपका this one when moment and torque both is applied. For this question correct answer is option C. Option C is the correct answer. Clear story? If a circular shaft is subjected to a torque T and a bending moment M, then the ratio of maximum bending stress and maximum shear stress is given by. अब देखिए क्या पूछ रहा है ये, आपके पास एक सर्कुलर शाफ्ट है जिसमें आपने एक जगह अप्लाई कर दिया टॉर्क T और एक जगह आपने अप्लाई कर दिया बेंडिंग मोमेंट M। तो इस टॉर्क की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा आपके पास shear stress प्रोड्यूस होगा। इस मोमेंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो हमसे पूछा है कि बेंडिंग स्ट्रेस दैट इज सिग्मा डिवाइड बाय मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो सिग्मा डिवाइड बाय टाउ की वैल्यू पूछी है, सिग्मा मैक्स डिवाइड बाय टाउ मैक्स ये कितनी वैल्यू होगी। अगर मोमेंट m अप्लाइड है यूजिंग प्योर बेंडिंग इक्वेशन आई कैन राइट m अपॉन i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y, m अपॉन i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y। यहाँ से सिग्मा क्या आ जाएगा, m अपॉन i इंटू वाई। आई अपॉन वाई को मैंने बोला था z लिख सकते हैं अपन, सेक्शन मॉडुलस दिस कैन बी रिटन एज m डिवाइड बाय z। नाउ फॉर द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वैल्यू ऑफ z इज पाई बाय 64 d पावर 4 डिवाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r इज d बाय 2, दिस विल गिव यू पाई बाय 32 d पावर 3। यहाँ से हम z की वैल्यू पुट करेंगे तो विल फाइंड आउट दैट सिग्मा की वैल्यू आ गई मेरे पास 32m डिवाइड बाय पाई डी क्यू, 32m डिवाइड बाय पाई डी क्यू, ये वैल्यू आ गई मेरे पास सिग्मा की। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लूंगा यूजिंग प्योर टॉर्जन इक्वेशन। प्योर टॉर्जन इक्वेशन क्या बोलता है मेरा, दैट टाउ डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू टी डिवाइड बाय आई पी। तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, टी आर डिवाइड बाय आई पी। आई पी डिवाइड बाय आर कैन बी रिटन एज जेड पी दैट इज पोलर सेक्शन मॉडुलस, एंड जेड पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 32 डी पावर 4 डिवाइड बाय डी बाय 2। दिस विल गिव यू पाई बाय 16 डी क्यू, दिस विल गिव यू पाई बाय 16 डी पावर 3, दिस विल गिव यू पाई बाय 16 डी पावर 3। तो आपके पास जो वैल्यूज निकल के आई टाउ की दैट इज 16t डिवाइड बाय पाई डी क्यू, 16t डिवाइड बाय पाई डी क्यू। और क्वेश्चन में मुझे आइडेंटिफाई करना है टाउ डिवाइड सिग्मा डिवाइड बाय टाउ, तो सिग्मा डिवाइड बाय टाउ क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा बाय टाउ करूंगा तो दिस विल बी 2m डिवाइड बाय t, 2m डिवाइड बाय t। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। मैक्सिमम sigma max divided by tau max is given by 2m divided by t, 2m divided by t. This is the value of sigma divided by tau. Correct answer क्या आ गया मेरे पास, 2m divided by t, that is C option is correct. Clear यहाँ तक फंडे, ठीक है यहाँ तक। Next question is question number 3. Two shafts of same length and material are joined in series.
तो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था लास्ट क्लास में सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन के बारे में। आपके पास ये एक शाफ्ट है, इसके सीरीज में एक और शाफ्ट है, ठीक है। नाउ इफ द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स, फॉर एग्जांपल अगर ये D1 है और इसका डायमीटर D2 है, तो D1 डिवाइड बाई D2 हमको दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू 2। देन द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट विल बी, देन द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट विल बी। यहाँ पे मुझे सीरीज कनेक्शन का मुझे फंडा लगाना पड़ेगा, दैट इज द टॉर्क इन मटेरियल 1 इज इक्वल्स टू टॉर्क इन मटेरियल 2 is equals to the external torque that is applied. External torque that is applied. And the second equation that I have to use is pure bending equation. Pure bending equation क्या बोलती है मेरी? According to pure bending equation, T divided by IP is equals to G theta by L. T divided by IP क्या होता है आपका? Is equals to G theta by L. यहाँ से थीटा निकालेंगे, this will comes out to be TL divided by GIP. TL divided by GIP. T is same. हमसे पूछा है एंगल ऑफ ट्विस्ट का रेशियो क्या होगा, θ1 by θ2, या फिर रेशियो पूछा हमसे सिर्फ। दिस विल बी इक्वल टू IP2 डिवाइड बाय IP1, IP2 डिवाइड बाय IP1। सिंपली T सेम है, लेंथ सेम है, G सेम है, क्योंकि मटेरियल सेम है तो हमारा G की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पे जो आपका रेशियो आया दैट इज इक्वल टू IP2 डिवाइड बाय IP1। तो IP की वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास, पोलर सेक्शन मॉडुलस, पोलर मॉडुलस इज पाई बाय 32 D पावर 4, ये आपका D2 हो गया, और D1 क्या हो जाएगा, पाई बाय 32 2D रेज टू पावर 4। दिस विल बी गिवन बाय 1/16। रेशियो पूछा हमसे θ1 θ2 का, नहीं ओके, हमको क्या बताना है, हमको θ2 by θ1 बताना है। दिस विल बी इक्वल टू 16। तो जो रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा दैट इज इक्वल टू 16। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल इक्वेशन यूज करके हमको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फॉर अ hollow shaft of external and internal diameters this and this, the torsional section modulus will be equal to। hollow shaft के लिए मेरे पास internal diameter है that is equals to 5 centimeter, that is equals to 5 centimeter, and external dia is 10 centimeter। एक्सटर्नल डाया क्या है मेरे पास, 10 सेंटीमीटर्स। और मुझसे पूछा है सेक्शन मॉडुलस दैट इज ZP। सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, सी पाई बाय 32 10 रेज टू पावर 4 माइनस 5 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय D बाई 2। अब हमें क्या लेना है सेक्शन मॉडुलस के लिए, मैक्सिमम डिस्टेंस लेनी है, तो आपका क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय दैट इज 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। राइट इन द कमेंट सेक्शन कि ZP की वैल्यू क्या निकल के आई, ZP की वैल्यू क्या निकल के आई। देख लीजिए कैलकुलेशन है आपकी, इसके अंदर कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बता देता हूँ आप लोगों को क्या आएगा इसका। ये आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 184 के आसपास। दिस विल कम्स आउट टू बी अराउंड 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज 184। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा देखिए मुझसे। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझसे पूछा है अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट हैज बीन सब्जेक्टेड टू अ प्योर टॉर्जन मोमेंट। Subjected to a pure torsion moment, the ratio of maximum shear stress to maximum normal stress at any point would be। अब देखिए क्या पूछा है इसके अंदर मुझसे। मुझसे पूछ लिया है कि आपके पास एक सर्कुलर शाफ्ट है जिसके ऊपर मैंने एक प्योर टॉर्जन अप्लाई कर रखा है। मुझसे पूछा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम shear स्ट्रेस टू द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास अगर सिर्फ टॉर्क अप्लाइड है, टॉर्जन अप्लाइड है, तो मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेस क्यों आएगा। नॉर्मल स्ट्रेस क्यों आएगा, क्योंकि आपको मैंने क्लास में बताया था कि अगर टॉर्जन मोमेंट अगर अप्लाई होता है बॉडी के ऊपर, देन ओनली shear stresses is produced, बट इक्विवेलेंट मोमेंट का कंसेप्ट क्या बोलता है आपका। इक्विवेलेंट मोमेंट का कंसेप्ट ये बोलता है कि m इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/2 m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, राइट। यहाँ पे मेरे पास जो एक्सटर्नल मोमेंट अप्लाइड है दैट इज इक्वल्स टू 0, मोमेंट की वैल्यू 0 है, तो m को 0 पुट कर देंगे, तो m इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू t/2। m इक्विवेलेंट इज t/2। इसका मतलब ये हुआ कि इस मोमेंट के बराबर मेरे को निकालना है सिग्मा मैक्स, और इस टॉर्क के बराबर मुझे कैलकुलेट करना है टाउ मैक्स। और मुझे पूछा है सिग्मा मैक्स डिवाइड बाय टाउ मैक्स क्या हो, रेशियो ऑफ टाउ मैक्स डिवाइड बाय सिग्मा मैक्स पूछा है। तो सबसे पहले टाउ मैक्स निकाल लेते हैं। टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 16t डिवाइड बाय पाई डी क्यूब, 16t डिवाइड बाय पाई डी क्यूब, एंड वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 32m डिवाइड बाय पाई डी क्यूब, 32m डिवाइड बाय पाई डी क्यूब। m की वैल्यू क्या है, t/2, तो अगर मैं t/2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 16t डिवाइड बाय पाई डी क्यूब। मतलब ये हुआ कि जो मेरा टाउ मैक्स था और जो मेरा सिग्मा मैक्स था वो क्या निकल के आ गया, यहाँ पे इक्वल निकल के आ गए। दैट मीन्स देयर रेशियो विल बी इक्वल्स टू 1/1, द रेशियो विल बी इक्वल टू 1/1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, a torsional member if fabricated from two concentric thin tubes, at the ends the tubes are welded to rigid disc so that both the tubes are twisted as a unit. The radius of the outer tube is 2r and that of the inner tube is r। आपके पास इस तरीके से ट्यूब्स है, ठीक है, दो कंसेंट्रिक ट्यूब है, इस तरीके से, और आपसे बोला है कि जो आउटर रेडियस है जो बड़े वाले का है दैट इज इक्वल्स टू 2r एंड द इनर वन इज इक्वल्स टू r, and at the end a moment is applied, the radius of the outer tube is 2r and this is the shear stress developed in the outer tube। outer tube के अंदर टाउ नॉट आपका shear stress develop हो गया, outer tube के अंदर जो आपका shear stress develop हुआ that is equals to टाउ नॉट। तो हमसे पूछा है then the shear stress in the inner tube will be, then the shear stress in the inner tube will be equal to, अगर ये टाउ नॉट है तो इनर ट्यूब के अंदर आपका shear स्ट्रेस कितना जनरेट होगा। सिंपली अगर मैं इक्वेशन की बात करूं आपके shear स्ट्रेस की इक्वेशन क्या होती है, टाउ डिवाइड बाय आर इज इक्वल्स टू टी डिवाइड बाय आई पी इज इक्वल्स टू जी थीटा बाय एल, जी थीटा बाय एल। नाउ since the tube is concentric, since tube is concentric, तो मतलब क्या हुआ कि ये आपका एक पैरेलल कनेक्शन की तरह काम करेगा क्या, and I can say that theta 1 is equals to theta 2
दैट मीन्स थीटा इज कांस्टेंट, लेंथ इज कांस्टेंट, मटेरियल सेम है, मटेरियल इज सेम, तो आपका जी थीटा बाई एल क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा क्या, दैट विल बी कांस्टेंट। दैट मीन्स your shear stress is directly proportional to radius, shear stress is directly proportional to radius। तो अगर अगर वो 2r पे 2r रेडियस पे अगर टाउ नॉट है तो r रेडियस पे कितना हो जाएगा, दैट विल बी टाउ नॉट डिवाइड बाय 2, दैट इज 0.5 टाउ नॉट, क्या हो जाएगा वो 0.5 टाउ। क्लियर है स्टोरी, सिंपल हम टॉर्जनल इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, प्योर टॉर्जन इक्वेशन का, और उससे हम क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर रहे हैं। Next question is question number 7. A rectangular bar has been subjected to torsion. The maximum shear stress will occur, कहाँ पे occur होता है आपका, at the middle of the longer side, simple, at the middle of the longer side। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, it will occur at the middle of the longer side। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। A circular shaft is subjected to a torque T which is half of the bending moment applied। आपके पास एक सर्कुलर शाफ्ट है, उसके ऊपर टॉर्क T अप्लाइड है which is equals to half of the bending moment applied, that is m by 2। then the ratio of maximum bending stress and maximum shear stress। सिंपल, अगेन ये वही वैसा ही क्वेश्चन हो गया क्या जो हमने अभी जस्ट किया है, सिंपल है, वैल्यू डिफरेंट है बस। हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दैट इज सिग्मा मैक्स टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, हमसे सिग्मा मैक्स डिवाइड बाय टाउ मैक्स पूछ लिया, क्या होगा, सिग्मा मैक्स क्या हो जाएगा 32m डिवाइड बाय पाई डी क्यूब, m इज इक्वल्स टू 2t, यहाँ पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा आपका 64t डिवाइड बाय पाई डी क्यूब, और टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 16t डिवाइड बाय पाई डी क्यूब, पाई डी क्यूब। तो हमसे क्या पूछा है, सिग्मा मैक्स डिवाइड बाय टाउ मैक्स, दैट विल बी इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 16, दैट इज इक्वल्स टू 4, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। तो करेक्ट आंसर इज 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। A circular shaft fixed at end A has diameter d for the half of its length and diameter d by 2 over the other half. What is the rotation of C relative to B if the rotation of B relative to A is 0.1 radians? मतलब आपके पास थीटा बी ए आपको गिवन है, दैट इज 0.1 रेडियंस, और आपसे पूछा है थीटा सी बी कितना होगा फॉर दिस पर्टिकुलर केस। टॉर्क टी इज अप्लाइड इन दिस केस, दिस इज अ सीरीज कनेक्शन क्वेश्चन, तो आई कैन से दैट टॉर्क इन मेंबर ए बी इज इक्वल टू टॉर्क इन मेंबर सी बी, ए बी और सी बी मेंबर के अंदर आपका टॉर्क क्या होगा, दैट विल बी सेम। और थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा का फॉर्मूला होता है टी एल डिवाइड बाय जी आई पी, टी एल डिवाइड बाय जी आई पी। टॉर्क सेम है, लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, तो जी भी सेम है, तो मतलब आपका थीटा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, सिंस योर टॉर्क लेंथ जी ऑल आर सेम, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ थीटा विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ आईपी, आईपी इज पोलर सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी थीटा की वैल्यू होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू आईपी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी। तो यहाँ पे जो आपका थीटा बी ए डिवाइड बाय थीटा बी सी अगर मैं करूँ, यहाँ पे थीटा सी बी इज इक्वल्स टू आई पी ऑफ सी बी डिवाइड बाय आई पी ऑफ ए बी। दिस वैल्यू कैन बी गिवन एज थीटा बी ए आपका 0.1 रेडियंस है, ये मान लीजिए आपका थीटा सी बी है, दिस इज इक्वल्स टू आई पी सी बी इज पाई बाय 32 d by 2 raised to power 4,
डिवाइड बाय पाई बाय 32 डी पावर 4। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। दिस विल गिव यू 0.1 डिवाइड बाय थीटा सी बी इज इक्वल्स टू 1 बाय 16। यहाँ से आपका थीटा सी बी क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1.6 रेडियंस। तो जो आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ एंड सी विद रिस्पेक्ट टू एंड बी आएगा दैट इज इक्वल्स टू 1.6 रेडियंस। जो वैल्यू है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलर सेक्शन मॉडुलस दैट इज IP and it is given 1.6 रेडियंस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। For a permissible stress, 10th question, for a permissible shear stress Fs, the torque transmitted by a thin tube of mean diameter d and thickness t is given by। यहाँ पे जो आपका वैल्यू आती है, आपका जो वैल्यू आती है दैट इज थिन ट्यूब के लिए। थिन ट्यूब पे ध्यान रखिए, द फॉर्मूला इज फॉर थिन ट्यूब आपके पास मीन डाया दे रखा है, आपको मीन डाया दे रखा है और थिकनेस दे रखा है। तो फॉर थिन ट्यूब्स the value of torque that is transmitted is equals to a mean into t into fs, a mean into t into fs, that is permissible shear stress। तो जो आपका मीन रेडियस होगा दैट इज पाई बाय 4 d स्क्वायर इंटू टी इंटू एफ एस। ठीक है, दैट विल बी द आंसर। आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ए मीन इंटू टी इंटू एफ एस। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसके अंदर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसका बेस्ट आंसर आपका सी देना पड़ेगा बिकॉज आपका यहाँ पे इसको रेडियस मान के आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आंसर विल बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज आस्क्ड इन 2018। A shaft rotating n rpm under a torque T transmits a power। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला, अगर किसी भी शाफ्ट के ऊपर टॉर्क T अगर मैं अप्लाई कर दूं तो पावर ट्रांसमिट का फॉर्मूला होता है 2 पाई n इंटू टी डिवाइड बाय 60। n is the number of revolutions per minute, T is the external torque applied and this will be equal to pi n T divided by 30 Newton meter per second। This is the value of torque that is transmitted, this is the value of power that is transmitted when a torque T is applied। ठीक है यहाँ तक कहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 is done, question number 12। If a solid shaft diameter 20 centimeter, length 400 centimeter, n is equals to 0.810 power 5 Newton per m square when subjected to a twisting moment produce a maximum shear is this। तो what is the value of angle of twist in radians? सिंपल, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? TL डिवाइड बाय GIP, TL डिवाइड बाय GIP, TL डिवाइड बाय GIP, TL डिवाइड बाय GIP। टॉर्क आपको गिवन है, ठीक है, टॉर्क गिवन नहीं है, क्या करेंगे हम, हमको ये गिवन है कि शियर स्ट्रेस कितना होना चाहिए, तो टाउ डिवाइड बाय आर इज इक्वल्स टू टी डिवाइड बाय आई पी इज इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल। ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं हम, हमको थीटा निकालना है, टॉर्क पता है, रेडियस पता है, एल पता है एंड जी पता है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। आपके पास टाउ की वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर डाया, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर मीन्स 100 mm is equals to g is 0.810 power 5। theta we need to calculate, L is 400 centimeter that is 4000 mm, 4000 mm। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा देख लीजिए। दिस इज 1/2, कितना हो जाएगा ये, थीटा इक्वल टू 4000
डिवाइड बाय 2 इंटू 0.8 10 पावर 5, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 1.6 10 पावर -2, ये आपका हो जाएगा 0.025 रेडियंस। 0.025 रेडियंस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हेयर इज करेक्ट। ऑप्शन सी हेयर इज करेक्ट। सिंपल टॉर्जन इक्वेशन याद रखिए, प्योर टॉर्जन इक्वेशन, क्वेश्चन विल बी इजीली कंप्लीटेड। हमको क्या करना था यहाँ पे, टाउ बाई आर इक्वल टू टी डिवाइड बाई आई पी इक्वल टू जी थीटा बाई एल, ये ध्यान रखिए, यहाँ से हमको थीटा कैलकुलेट कर लेना था। एंड दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2018, दिस इज द लेटेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन द एसएससी एग्जाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इन अ शाफ्ट द shear stress is not directly proportional to, shear stress, अगेन मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी, द सेम इक्वेशन दैट आई एम यूजिंग नंबर ऑफ टाइम्स। अब किसके प्रोपोर्शनल नहीं है, ऑप्शन देख लेते हैं। रेडियस ऑफ द शाफ्ट, तो उसके तो प्रोपोर्शनल है भैया, टाउ डिवाइड टाउ इज प्रोपोर्शनल टू आर। एंगल ऑफ ट्विस्ट, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू थीटा आल्सो। लेंथ ऑफ द शाफ्ट, ओके, हियर टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। मॉडुलस ऑफ रिलेटिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, pick up the incorrect statement from the following. Torsional resistance of the shaft is proportional to, torsional resistance of the shaft is proportional to, torsional resistance क्या हो जाएगा, torsional resistance क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, tau upon r equal to t divided by ip equal to g theta by l। तो आपसे पूछा है torsional resistance किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो आपसे सिंपली क्या पूछा है, अगेन जो आपको शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन है उसको पूछ लिया है आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा टॉर्सनल रेजिस्टेंस ऑफ द शाफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, द आंसर विल बी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंगल ऑफ ट्विस्ट, रेसिप्रोकल ऑफ द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट सेक्शन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आता ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो योर वैल्यू विल बी ऑप्शन, इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है। टॉर्सनल रेजिस्टेंस ऑफ द शाफ्ट, टॉर्सनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका। अब टॉर्सनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है हमको, ठीक है। टॉर्सनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दैट इज नीड टू इम्पोर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आपके पास जो ये वैल्यू है IP डिवाइड बाय आर, जो आपकी वैल्यू है टाउ इज इक्वल्स टू T डिवाइड बाय IP इंटू आर, ठीक है। तो जो आपका मटेरियल है उसकी जो टॉर्सनल रेजिस्टेंस है वो किससे डिफाइन होगी, दैट इज डिफाइंड बाय द IP डिवाइड बाय आर, दैट इज डिफाइंड बाय द IP डिवाइड बाय आर। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज टाउ इज इक्वल टू टी डिवाइड बाय ZP, जिसको क्या बोला था हमने, सेक्शन मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस। तो जो आपका ZP की वैल्यू है, ZP की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो टॉर्जन को रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो दैट मीन्स वी नीड टू आइडेंटिफाई कि आपका ZP किसके प्रोपोर्शनल है, ZP किसके प्रोपोर्शनल है। फॉर दैट हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, जी थीटा बाई एल, जी थीटा बाई, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ZP इज इक्वल टू टी एल डिवाइड बाई जी थीटा। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, दैट इज नॉट करेक्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट सेक्शन, तो ZP आपका क्या होता है, IP डिवाइड बाय R, और IP क्या हो गया, पाई बाय 32 d पावर 4 डिवाइड बाय d बाय 2, मींस आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, पाई बाय 64 d पावर 4। तो कहीं ना कहीं आपका ZP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपके ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका मोमेंट, आपका ऑब्जेक्ट का टॉर्सनल रेजिस्टेंस होगा, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे
तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ टॉर्जन। नेक्स्ट चैप्टर इज थ्योरी ऑफ फेलियर। थ्योरी ऑफ फेलियर, यहाँ पे हम मेनली 5 थ्योरी देखने वाले हैं। थ्योरी ऑफ फेलियर बहुत ब्रीफली मैं आपको बता दूंगा फटाफट से, ठीक है। मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ, इसका इंट्रोडक्शन कल बात करेंगे इसकी डिटेल के अंदर। थ्योरी ऑफ फेलियर्स में मेनली आप 5 थ्योरी देखने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी या फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। नेक्स्ट इज मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी एंड द नेक्स्ट वन विल बी मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी के बाद नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी के बाद आपके पास आएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। नेक्स्ट विल बी मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी एंड द लास्ट वन विल बी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। आपके 5 आपको थ्योरी पढ़नी है। इन पांचों के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इसके अंदर फॉर्मूलाज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या इसको मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको पता लगेगा कल की क्लास के अंदर। कल की क्लास में आपसे बात करूंगा मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 5 थ्योरी, उनके साइंटिफिक नेम, जो जिस साइंटिस्ट ने उसको डिराइव किया है उनके बेस पे उनका साइंटिफिक नेम है, एंड देन उसके अंदर एक एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि किसका क्या मतलब होता है, कैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं, वो आपको वहां पे ध्यान रखना है। कल हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ फेलियर्स की, तो ज्वाइन करना ना भूले एट 7:45 AM शार्प। टुमारो हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ फेलियर्स, उसके बाद उसे क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स के अंदर क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होता है, रैंकाइन थ्योरी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, वो मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। बिफोर दैट, don't forget to like this video, don't forget to subscribe this video. If you have any doubt, if you have any doubts, you can ask me on my Facebook ID. काफी लोगों के डाउट्स आए भी थे, I tried to solve as many as possible as soon as possible. You can ask me on my Facebook ID, that is Avinash Kumar Jha. You can search AVINASH Avinash KUMARJHA Kumar Jha. तो वहाँ पे आप सर्च करके you can find my profile and you can ask my query. ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। रिवाइज करते रहिए, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे विद न्यू कंसेप्ट्स, न्यू फॉर्मूलाज एंड न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।